السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ایوب کھوکھر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسکائی نیوز لاہور۔ آج میں آپ کو انڈس کوئین کی سیر کروانے جا رہا ہوں۔ یہ کوٹ میٹھن کے دریائے ستلج کے کنارے پر موجود ہے، اور آج میں آپ کو اس کی مکمل سیر بھی کرواؤں گا، اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور اس کا ہر دور میں جو اس کے نام رکھے گئے تھے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ لیکن جس دور میں اس کا اختتام ہوا، اور اس دور میں اس جہاز کا جو نام تھا انڈس کوئین تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے نام بھی تبدیل ہوتے گئے۔ اور آئیں میں آپ کو مکمل اس کی سیر بھی کرواؤں گا کہ اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت میرے ساتھ سینئر صحافی اور ساتھی رپورٹر جام عرفان پہوڑ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور کیونکہ وہ اس علاقے کے رہائشی ہیں اور اس علاقے کی وہ سیاسی اور جو سماجی جو صورتحال ہے اس کو اچھی طرح وہ رپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے آج ہم نے ان کو تھوڑی سی تکلیف دی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، اس انڈس کوئین کے بارے میں ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے اوپر کون کون سی شخصیات نے سفر کیا ہے، جو بھی آپ کے پاس معلومات ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈس کوئین کا بیسکلی جو پہلا نام ہے وہ ہے ستلج کوئین۔ سب سے پہلے انڈس کوئین 1867 میں نواب صادق صاحب چہارم نے انہیں انڈس کوئین کو دریائے ستلج کے مقام پہ، لودھرا کے مقام پہ انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنوایا۔ یہ شروع میں ایک ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے شاہی جہاز کے طور پہ استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد اس دوران میں جو نواب آف بہاولپور تھے، ان کے جو انگریز دوست جو انگلستان سے یہاں آتے تھے اپنا ریاست بہاولپور میں، تو ان کو اس حالیہ انڈس کوئین کے اوپر وہ دریائے ستلج میں ان کی فیملیز کو ان کو لے کے سیر و تفریح کر کے لیے یہ جہاز استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد اس جہاز کو جو ہے ڈیرہ غازی خان میں غازی گھاٹ کے مقام پر لوگوں کی آمد و رفت کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی پاکستان بننے کے ساتھ ہی جو پاکستان بننے سے پہلے انگریز دور میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے ایک روحانی پیشوا تھے بر صغیر میں، جو کہ شاعر ہفت زبان بھی ہیں، جنہوں نے مختلف 7 زبانوں میں جو شاعری بھی کی ہے، اور ان کے دور میں جو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تھے وہ نواب صاحب کے روحانی پیشوا تھے۔ تو نواب صاحب نے یہ چاچڑا سے کوٹ میٹھن شریف کی آمد و رفت کے لیے یہ ان کی اور ان کے لوگوں کے آمد و رفت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ جام صاحب یہاں کے سینئر رپورٹر بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی مکمل سیر بھی کرواتے ہیں، اور جام صاحب اس کا مکمل ہمیں ساتھ ساتھ تعارف بھی کرواتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا کیمرہ مین اس کو پہلے مکمل دکھائے گا، اور جتنے اس کے پورشن تھے، کتنی سواریاں اس کے اوپر سفر کیا کرتی تھی، یہ جام صاحب ہمیں جو ہے اپنا انتظامیہ کے لیے، جہاز کو چلانے والوں کے لیے وقف تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو اس وقت کے اپنا نواب صاحب کے استعمال میں تھا، تو یہاں پہ مختلف جو ہے ان کے کیبن بنے ہوئے تھے، تو ان کے استعمال میں تھا۔ سب سے اوپر والا روف ٹوپ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اپنا ایک مسجد اور جو بحری کپتان کے لیے جگہ تھی، اور ان کا کیبن بھی بنا ہوا تھا۔ جہاز میں ایک جنریٹر ہے جو یہاں پہ بجلی کے استعمال ہوتا تھا، بجلی بنانے کے لیے۔ اس کے اندر 2 پاورفل انجن ہیں جو جہاز کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جی ہم اب آگے چلتے ہیں اور نیچے والا پورشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ نیچے والے پورشن میں جو سواریاں اور عملہ بیٹھتا تھا، اس کے جو اوپر والا پورشن ہے وہاں پر نواب صادق اور ان کی فیملی سفر کیا کرتی تھی، اور جو اس کے بالکل اوپر والا پورشن ہے، تیسرا پورشن، اس کے اوپر جو ہے کپتان بھی بیٹھتا تھا، اور اس کے علاوہ جو عام سواریاں تھیں وہ بھی سفر کیا کرتی تھیں۔ اور اب ہم آپ کو نیچے والا پورشن بھی دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی حالت ہے اس وقت، وہ آثار قدیمہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے، کیونکہ یہ اس کے بارے میں مزید جام صاحب بھی رپورٹ کریں گے کہ یہ آثار قدیمہ کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کس طرح کا بنانا چاہیے، بلکہ عام لوگ اب یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جو آئیں
ان کو यहाँ पे एक अच्छा मौका मिलना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे कि आपने कहा आसार कदीमा ने हाल ही में इसके ऊपर जो है इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स वगैरह जो चोरी हो रहे थे उनके लिए अपने मुलाजमीन भी तैनात किए हैं, और इस टाइम इसके ऊपर थोड़ा सा काम भी हो रहा है आसार कदीमा के हवाले से। वो इसको कोशिश भी की जा रही है मकामी लोगों के हवाले से कि इंडस क्वीन को असर नौ तामीर किया जाए और इसको एक अच्छे होटल या रेस्टोरां में तब्दील करके लोगों की सैर व तफरी के लिए इसको बरूए कार लाया जाए। जी, इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये वो 2 डीजल इंजन हैं जिनकी मदद से इस इंडस क्वीन को चलाया जाता था, और इसके साथ इसके नीचे वाले पोर्शन में और भी मुख्तलिफ रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे सवारियाँ सफ़र किया करती थीं। लगभग यहाँ पर 400 पैसेंजर सफ़र करते थे एक ही टाइम में, लेकिन यहाँ पर जो अब इसकी हालत है वो बहुत ही इबरतनाक है। इसकी बिल्कुल कोई देखने वाली हालत नहीं है। मेरे ख़्याल में यहाँ पर अब कोई आसार कदीमा का कोई आदमी इसकी हिफाजत के लिए तैयार ही नहीं है, और मैं यही कहूँगा कि आसार कदीमा इसको अपने ज़िम्मे लेकर इसको एक अच्छे पार्क या म्यूज़ियम की शक्ल देकर इससे हम एक अच्छा रेवेन्यू भी हासिल कर सकते हैं, और अपने इलाके के लिए सैर व तफरी का भी एक अच्छा आवाम को मौका मुहैया कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंडस क्वीन है इसकी हालत को देखकर हमें अगर हम पीछे के दौर में जाएं तो हमें एक ऐसा लगता है कि जो कोट मिठन और चाचना शरीफ है यहाँ पर किस तरह की मतलब आवाम बस्ती थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम और रश हुआ करता था, जो लगभग 400 आदमी इसके ऊपर सफ़र करते थे। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में यहाँ पर कितनी आवाम रहती थी और कितना लोग ईज़िली सफ़र करते थे। ये नवाब ऑफ सादिक नवाब ऑफ बहावलपुर की तरफ से दिया जाने वाला जो हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह थे उनको उन्होंने गिफ्ट किया था। लेकिन उससे कुछ अरसा पहले नवाब ऑफ सादिक और उसकी जो फैमिली थी वो इसके ऊपर सफ़र किया करती थी, और जो उनके दोस्त आते थे इंग्लिस्तान से, अमेरिका से, जो भी अंग्रेज़ आते थे वो भी इस इंडस क्वीन के ऊपर उन्होंने सफ़र भी किया है। इंडस क्वीन पर मौजूद हूँ जो 1860 में नवाब ऑफ सादिक ने बनवाई थी अपनी सैर व तफरी के लिए। लेकिन आज यहाँ पर ये खस्ता हाली में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर कुछ सैर व तफरी के लिए दोस्त यहाँ पर आए हुए थे, और इनमें कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने इस इंडस क्वीन पर सफ़र भी किया था। आज उनसे बात करते हैं कि इसका सफ़र किस तरह का रहा और ये किस दौर में ये इसको ख़त्म किया गया। आए इनसे बात करते हैं भी हैं और जिन्होंने सफ़र भी किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आपने इस इंडस क्वीन के ऊपर सफ़र भी किया हुआ है? जी इंशाल्लाह क्या हुआ है। ये किस दौर में किया था, कौन सा सन था उस वक्त? 1988 में। 1988 में किया था। ये कौन से इलाके से कौन से इलाके में चलती थी? ये चाचना शरीफ से कोट मिठान आती थी, कोट मिठान से चाचना शरीफ फिर वापस उस वक्त इसके ऊपर जो लोग सफ़र करते थे कितना किराया लिया जाता था तकरीबन वो 50 पैसे करते थे या उससे 1 रुपया करते थे। 50 पैसे का उस वक्त इसके ऊपर सफ़र किया करते थे आप? जी। क्या बात है। और ये इसको तकरीबन कितना अरसा हो गया आपने तो फिर देखा होगा ये बस हमने लास्ट में ही से देखा है, और इसमें एक अपना वो हमारे फैमिली के साथ हम इधर आए थे कोट मिठान, और इस फैमिली के साथ ही वापस गए थे। अच्छा, मुझे तकरीबन 1988 में। 1988 में इसके ऊपर आपने आखिरी सफ़र किया। जी नाजरीन, इसके ऊपर ये जो इंडस क्वीन है 1988 में जो आइनी शायद हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने सफ़र किया है, और इससे मज़ीद भी बात करते हैं। अच्छा, इसका कप्तान कहाँ पे बैठता था और इसकी सवारियाँ ज़्यादातर कहाँ पे सफ़र करती थी, इसके कौन से हिस्से में? हमारा कैमरामैन भी दिखाएगा। जी, इसका कप्तान ये सामने जो नज़र आ रहा है ना, जी, इसके ही बैठता था, ठीक है। और इसके सामने जो पिछली साइड है उसमें मस्जिद बनी हुई है, दरमियान में सवारियां बैठती थीं, और इधर जो है जानवर भी मतलब ठहरा करते थे, और जो सवारियां उस टाइम होते थे टोयोटा डाला होता था या मतलब छोटे बसें वगैरह होती थीं, वो इधर रहती थीं। ज़्यादातर अमला और यानी ख़ास कोई मेहमान जो हैं वो उनको नीचे भी बिठाया जाता था। जी नाज़रीन, ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये भाई का कहना है कि यहाँ पर पैसेंजर भी होते थे और जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, मोटरसाइकिलें हो गई, गाड़ियाँ वगैरह हो गई, वो इस पोर्शन में होती थी। जो बेसमेंट थी इसके ऊपर जो मेहमान आते थे या जो VIP सवारी प्रोटोकॉल होता था वो नीचे बेसमेंट में हुआ करती थी, और जो कप्तान है और जो अमला है वो ऊपर चलते हुए देखा है इसको। उस टाइम कश्तियाँ भी चलती थी, हम कश्तियों पे आते थे, तो इसको चलते देखा है हमने। वो कौन सा सन था, कौन सा दौर था वो? 88 90 में तो जैसे क्लोज हो गया ना, 90 एंड था इसका,
90 में बंद हुआ है ये। उसके बाद जो है वो कश्तियों के पुल बना दिए गए, फिर इसको ऐसा ऐसा खड़ा कर दिया गया, किसी ने नहीं इसकी तरफ देखा। पानी भी कम पड़ गया क्योंकि पानी पीछे से आता नहीं था, इसके चलने के लिए पानी चाहिए खासी तादाद में, तो वो पानी था नहीं, ये बेचारा यहाँ पे आ गया, खड़ा हो गया। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका ये भी कहना है कि सिर्फ जो है ना इसकी ये भी एक वजह थी कि पानी कम होने की वजह से इसको दरिया के किनारे लगा दिया गया। और हमारे साथ कुछ और भी भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने भाई यहाँ पर क्या क्या देखा था इसके दौर में? हाँ, इस दौर में हमने भी इसके ऊपर सफ़र किया 1-2 दफ़ा, ज़्यादा नहीं। फिर तकरीबन कुछ महीनों में पानी थोड़ा थोड़ा कम होता गया, फिर इसको हमने जो है ना किनारे पे देखा। आप यहाँ के मकामी लोग हैं, इसी जगह पे रहते हैं तो इसी जगह पे नहीं, चाचना अच्छा अच्छा, आप किराया भी देते थे जब सफ़र करते थे? जी, यही तकरीबन 25 पैसे 50 पैसे यही है जड़ा ना, 1 रुपया होता था, उससे जो है ना काफ़ी चीज़ें मिलती। आप चाचना शरीफ से कोट मिठान का 1 रुपया देते थे, 25 पैसे 50 पैसे दिया करते थे, ठीक है। और इसके ऊपर कोई आपकी कोई ऐसी याद, कोई ऐसा मतलब कि कोई वाक़या हुआ जो आपको याद हो अब तक? हाँ, हमारे मेहमान थे बहावलपुर के, ठीक है ना, वो नीचे लेडीज़ थी, ठीक है ना, वो नीचे बैठ के पानी कहीं से आ गया, उन्होंने, वो शहरी लोग थे, चीखें मारना शुरू कर दी, कोई ये क्या हो गया। फिर वो अंदर इंतज़ामिया थे, फिर उन्होंने कहा कि बाजी परेशान नहीं होना, ठीक है ना, ये पानी हम निकालेंगे डब्बों की वजह से। वो डब्बों की मदद लेते थे, ठीक है ना, डब्बों से जो है पानी निकाल दो। उन्होंने कहा शायद पानी भर गया है इसमें, फिर बाद में उन लोगों को पता चला कि ये भी होता है। व्यूज़ लगे हुए थे, वो जो बाहर के व्यूज़ देखने के लिए ना इनके साइडों में लगे हुए थे, शीशे लगाए गए थे, क्योंकि वो अंदर से ही उनके साइडों से व्यूज़ देखने से तफरीह कहते हैं बाकी चीज़ों के लिए। जिस दौर में ये चलती थी उस दौर में आपके सफ़र के दौरान कोई वाक़या पेश आया हो या आपने कोई इसके साथ कोई वाक़या ऐसा सुना हो, वो हमारे व्यूवर के साथ शेयर कर दें। नहीं, इसके साथ मैंने एक दफ़ा देखा था कि वो ना एक जो है वो अपना जो पानी था ना उधर कम था, तो ये खुश्की पे चढ़ गया, तो फिर इन्होंने दूसरा वो जो एक बंद पड़ा हुआ है, दूसरा पीछे भी वो जो खड़ा है, इसको मंगवाया, इसके मदद से इसे पीछे खींच के फिर दोबारा बड़े पानी में लेके गए। इसको क्या कहते हैं? ये इसको कश्ती कहते थे अपना। वो ये इसकी हंगामी सूरत हाल के लिए वो बड़ा है। ये नाज़रीन जो आपको छोटी कश्ती नज़र आ रही है, ये भाई का कहना ये है कि जब इस इंडस क्वीन के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता था या कहीं फंस जाती थी या कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल बर्पा होती थी तो उसके लिए ये कश्ती इसको सहारा देने के लिए जाती थी। और आज भी इसकी दोस्ती इसके साथ कायम है, आज भी ये इसका साथ दे रही है। आप ये देख सकते हैं कि जब ये अपने उरूज पर थी तब भी ये कश्ती इसको सहारा देने के लिए यहाँ पर मौजूद थी, और जब इसका इख्तिताम हो गया है तब भी ये आज भी इसके साथ ही है। और हमारे साथ यहाँ के सीनियर रिपोर्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं कि वो भी हमारे साथ हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं इसके बारे में, आप इसके बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इसके अलावा कुछ हमारे साथ हमारे व्यूवर के साथ कुछ बात शेयर कर दें आप। मैं आपके व्यूअर्स को ये पैगाम दूंगा कि इस इंडस क्वीन के हवाले से ख़ुसूसन जो रियासत बहावलपुर थी उसके साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है या सराइकी वसीब के साथ किया जा रहा है, तमाम लोग उसके हक़ में आवाज़ दें। इंडस क्वीन को बेसिकली दिखलाने का मतलब ये है कि रियासत बहावलपुर और इसके जो मकामी लोग थे वो पाकिस्तान से पहले रियासत बहावलपुर के दौर में वो एक अमीर रियासत थी। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि आप रूल्स रॉयल्स बहावलपुर में जो है म्यूनसिपलिटी की गाड़ियों के तौर पे इस्तेमाल हुई हैं। उसी हवाले से मोहसिन पाकिस्तान नवाब सुब्बू सादिक ने जब रियासत बहावलपुर को पाकिस्तान में इंतज़ाम किया तो उसके बाद से जो सराइकी पट्टी है, रियासत बहावलपुर की पट्टी है, उसके साथ जो हालात चल रहे हैं वो काफ़ी पेचीदा जा रहे हैं। जो भी इनके साथ हमारे साथ जो सतीला सलूक किया जा रहा है इसके साथ इसके ऊपर हम सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ जो हालात जो मामलात किए जा रहे हैं, हमारी जो विरसा है उसको महफूज किया जाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, इंशाअल्लाह मैं आपको एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने मेज़बान मलिक अयूब खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।